بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ نینسی پیلوسی نے کیا تائیوان کا دورہ، صدر سے ملاقات، خطے میں تناؤ عروج پر، بیجنگ غضبناک، امریکہ کو دی وارننگ۔ چائنا نے غیر معمولی جنگی مشقیں شروع کر دیں، تائیوان کے آسمانوں میں فائٹر جیٹس کی اڑانیں، جاپان نے بھی کیا اعتراض۔ یمن جنگ بندی 2 مہینوں کے لیے بڑھا دی گئی، یونائیٹڈ نیشنز نے کیا اعلان، کہا مستقل سیز فائر کی کوششیں جاری ہے۔ امریکہ سعودی عرب اور امارات کو $5 بلین کے ہتھیار بیچے گا، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کیا اعلان۔ یوکرین سے روانہ اناج کا جہاز ترکی سے لبنان جائے گا، معائنوں کے بعد اجازت دے دی گئی۔ گووند پنساری قتل کیس ایس آئی ٹی سے مہاراشٹر اے ٹی ایس کے حوالے، بامبے ہائی کورٹ کا فیصلہ۔ پارلیمنٹ میں گڑبڑ جاری، حکومت نے ڈیٹا پروٹیکشن بل واپس لے لیا۔ نیشنل ہیرالڈ کا دفتر سیل، انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی منی لانڈرنگ کیس میں کارروائی۔ بیک ویل کیک ہاؤس، ہم تیار کرتے ہیں خالص اپنے ہاتھوں سے ڈرائی فروٹس، پیور گھی اور نمبر 1 کوالٹی کے زعفران، پستہ، بادام، کاجو اور کھوئے سے تیار کیے گئے بیک ویل کے اسپیشل دم کے روٹ۔ ہندوستان میں پہلی مرتبہ شوگر فری اور گڑ کیسر روٹ تیار کرنے والے پہلے بیکرز، اپنے نام کی طرح کوالٹی میں بھی نمبر 1 ہے۔ سارے شہر کی پسند بیک ویل کیک ہاؤس، ٹوری چوکی، ایکس روڈ، حیدرآباد۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ امریکی ہاؤس آف ریپرزینٹیٹوز کی اسپیکر نینسی پیلوسی نے چائنا کی وارننگز کو نظر انداز کرتے ہوئے تائیوان کا دورہ کیا، جس سے بیجنگ غضبناک ہے۔ اس دورے سے خطے میں تناؤ کافی بڑھ گیا ہے اور چائنا کی فوج حرکت میں ہے۔ یہ 25 سال میں امریکہ کے کسی اعلیٰ عہدیدار کا تائیوان میں پہلا دورہ ہے۔ نینسی پیلوسی امریکہ کی تیسری اہم عہدیدار ہیں۔ پیلوسی نے تائیوان کی صدر سائی ان وین سے ملاقات کی۔ تائیوانی صدر نے کہا کہ جزیرہ کسی سے نہیں ڈرے گا۔ چائنا نے نینسی پیلوسی کے دورے کے دوران خطے میں جنگی مشقیں شروع کر دی ہیں اور تائیوان کی ہوائی نینسی پیلوسی نے اپنے دورے کے دوران کہا کہ امریکہ تائیوان کو اکیلے نہیں چھوڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ وہ یہی پیغام دینے کے لیے تائیوان آئی ہیں۔ پیلوسی نے جمہوریت کے لیے تائیوان کے عہد کی تعریف کی۔ چائنا تائیوان پر اپنا حق جتاتا ہے۔ بیجنگ نے وارننگ دی تھی کہ اگر نینسی پیلوسی تائیوان کا دورہ کریں گی تو امریکہ کو اس کے نتیجے بھگتنے پڑیں گے۔ پیلوسی نے صدر تائیوان کے ساتھ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں ہماری دوستی پر فخر ہے۔ امریکہ پہلے سے کہیں زیادہ تائیوان کے ساتھ کھڑا ہے اور یہی پیغام دینے کے لیے وہ یہاں آئی ہیں۔ حالانکہ امریکی صدر جو بائیڈن نے نینسی پیلوسی کے دورے پر اعتراض کیا تھا۔ تائیوان کی صدر نے نینسی پیلوسی کا دورہ کرنے کے لیے ان کا شکریہ ادا کیا اور جمہوریت، انسانی حقوق اور چائنا کی عزت نفس کے لیے ٹھہرنے پر ان کی تعریف کی۔ تائیوان کی وزارت دفاع نے چائنا کی فوجی مشقوں کو غیر واجبی قرار دیا اور کہا کہ یہ تائیوان کی ناکہ بندی کے برابر ہے۔ تائیوان کی صدر نے کہا کہ فوجی دھمکیوں سے وہ نہیں ڈرتی، ہم اپنی خود مختاری کی حفاظت کریں گے۔ نینسی پیلوسی نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ چائنا ان لوگوں کے راستے میں نہیں آ سکے گا جو جزیرے کا دورہ کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے تائیوان کو دنیا کے آزاد سماجوں میں سے ایک قرار دیا۔ پیلوسی اور کانگریس کے ڈیلیگیشن نے تائیوان کے ارکان پارلیمنٹ سے بھی ملاقات کی۔ انہوں نے تائیوان کے وزیر خارجہ سے بھی ملاقات کی۔ پیلوسی چائنا اور چائنیز کمیونسٹ پارٹی کی کٹر مخالف سمجھی جاتی ہیں۔
चाइना ने एक जवाबी कार्रवाई करते हुए ताइवान से मेवे और मछली के इंपोर्ट पर पाबंदी लगा दी है और जजीरे को रेत की सप्लाई रोक दी है। जापान ने चाइना की फौजी मशकों पर फिक्रमंदी का इजहार किया है। जापानी हुकूमत ने कहा कि चाइना की मशकों से जापान का मौशी जोन मुतासर हो रहा है। रशिया और ईरान ने नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे पर तनकीद की है। ताइवान किसी वक्त चाइना का ही हिस्सा था। 1940 के दहे में चाइना में एक सिविल वॉर हुई थी जिसमें कम्युनिस्टों ने नेशनलिस्टों को हरा दिया था और नेशनलिस्ट लीडर्स ताइवान फरार हो गए थे। वहां से उन्होंने अपनी अलग हुकूमत का ऐलान किया था, जबकि मेनलैंड चाइना पर कम्युनिस्टों का कब्जा हो गया था जिसके लीडर माओ जेतुंग थे। लिए चलते हैं आपको मिडिल ईस्ट। यमन जंग के फरीकों ने जंगबंदी की मुद्दत और 2 महीनों के लिए बढ़ा दी है। यूनाइटेड नेशंस ने यह ऐलान किया। यमन से मुताल्लिक यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे हांस ग्रैंडबर्ग ने कहा कि मुझे यह ऐलान करते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि फरीकों ने जंगबंदी की मुद्दत को 2 अगस्त से और 2 महीनों के लिए बढ़ा दिया है और अब 2 अक्टूबर 2022 तक जंगबंदी रहेगी। यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे ने यह भी कहा कि उन्होंने जंगबंदी की मुद्दत को और बढ़ाने के लिए और उसे मुस्तकिल करने के लिए एक तजवीज़ पेश की है जिस पर अच्छे जवाब का इरादा जाहिर किया गया है। उन्होंने कहा कि जंगबंदी का मकसद सिविलियंस को राहत देना है और मसले का पुरअमन हल निकालने के लिए साजगार माहौल बनाना है। अमेरिका और ओमान के ओहदेदार यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे की कोशिशों की तायीद कर रहे थे। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने पिछले महीने सऊदी अरब और इसराइल का दौरा किया था जिसके बाद इन कोशिशों में तेजी आई थी। यमन के हूसियों की तरफ से बातचीत में हिस्सा लेने वाले ओहदेदार मोहम्मद अब्दुलसलाम ने ट्वीट किया कि बातचीत में उन्होंने जंगबंदी रोकने और नाकाबंदी खत्म करने पर जोर दिया है। सऊदी अरब और उसके इत्तेहादी मुल्कों ने 2015 से यमन की नाकाबंदी कर रखी है और यमन पर हमले कर रहे हैं। 2 अप्रैल को जंगबंदी हुई थी जिसकी मुद्दत वक्फे से बढ़ाई गई। इतवार को अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने यमन की आलमी सतह पर तस्लीम की जाने वाली हुकूमत के चीफ रिशाद अल आलमी से बातचीत की थी जिन्हें हालिया अरसे में अमेरिका के इत्तेहादी सऊदी अरब ने मुकर्रर किया था। सऊदी अरब ने जंगबंदी की मुद्दत बढ़ाने पर खुशी का इजहार किया है। एक बयान में सऊदी वजारत खारजा ने यमन में सिक्योरिटी और इस्तेहकाम पैदा करने की ज़रूरत पर जोर दिया। यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे ने हूसियों को ताइज गवर्नरेट इलाके में सड़कें दोबारा खोलने का मशवरा दिया। सऊदी अरब 2015 से यमन में हमले कर रहा है जिसका मकसद यमन में सऊदी अरब की मर्जी की हुकूमत कायम करना है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि हूसियों के साथ ताज़ा लड़ाई में यमन की सरकारी फौज का एक ऑफिसर हलाक हो गया। सऊदी मीडिया में ये बात कही गई। अमेरिका ने सऊदी अरब और यूएई को भारी हथियार बेचने को मंजूरी दे दी है। इन हथियारों की मालियत $5 बिलियन से ज्यादा है। स्टेट डिपार्टमेंट ने यह ऐलान किया। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने हाल ही में सऊदी अरब का दौरा किया था। उन्होंने जद्दा में जीसीसी मुल्कों के लीडर से भी मुलाकातें की थी। स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि सऊदी अरब अमेरिका से 300 पैट्रियटिक मिसाइल सिस्टम्स और आलात खरीदेगा जिसकी मालियत $3.05 बिलियन से ज्यादा है। यूएई अमेरिका से थर्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम हासिल करेगा जिसकी मालियत $2.25 मिलियन है। बाइडेन के सऊदी दौरे के बाद एक बयान में कहा गया था कि अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान पार्टनरशिप कई दहों से इलाकाई सिक्योरिटी के हवाले से काफ़ी अहमियत रखती है। सऊदी अरब और अमेरिका दोनों ने ईरान को न्यूक्लियर हथियार हासिल करने से रोकने की ज़रूरत पर जोर दिया है। जारी मिडल ईस्ट की खबरों के सिलसिले को इस्राएली फौज ने गाजा में फ़लस्तीनी किसानों पर ताज़ा हमले किए। फ़लस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने बताया कि इस्राएली फौज ने मशीन गनों से फायरिंग की और आंसू गैस शेल्स बरसाए। ये कार्रवाई खान यूनुस के इलाके अबासान में की गई। हमास के एक डेलीगेशन ने इजिप्ट के दारुल-हुकूमत काहिरा का दौरा किया। इस दौरे का मकसद फ़लस्तीनी ग्रुपों में सुलह के अमल को आगे बढ़ाना है। हमास के तर्जुमान हाजिम कासिम ने ये बात बताई। ईरान ने इसराइल की तौसी पसंद पॉलिसियों के खिलाफ फ़लस्तीनियों की मदद जारी रखने का वादा किया। ईरान के वज़ीर ख़ारजा हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान ने इस्लामी जिहाद के सेक्रेटरी जनरल ज़ैद नखाला से तेहरान में मुलाकात करते हुए मुस्लिम मुल्कों के दरमियान इत्तेहाद की ज़रूरत पर जोर दिया। इस्लामी जिहाद के लीडर ने फ़लस्तीन कॉज़ और फ़लस्तीनी मुज़ाहमत की मदद के लिए ईरान की तारीफ़ की। इराक के शिया आले मुक़्तदा सदर के हामियों का एहतजाज जारी है जिसकी वजह से हुकूमत बनाने का अमल रुका हुआ है। मुक़्तदा सदर के हामियों को मनाने की कोशिशें की जा रही हैं कि वो अपना धरना ख़त्म करे। इस दौरान मुल्क में कौमी डायलॉग की ज़रूरत पर जोर दिया जा रहा है।
बात करते हैं यूक्रेन की बंदरगाह से रवाना होने वाला अनाज का पहला जहाज लबनान के लिए रवाना हो रहा है। ये जहाज तुर्की के साहिल पर रुका हुआ था, जिससे लबनान जाने की इजाजत मिल गई है। रशिया, यूक्रेन, तुर्की और यूनाइटेड नेशंस के ओहदेदारों ने इस्तांबुल में इस जहाज का मुआयना किया। अब वह लबनान के दारुल त्रिपोली के लिए रवाना हो रहा है। यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद से यूक्रेन की बंदरगाहें नाकाबंदी का शिकार हैं, जिसकी वजह से अनाज का एक्सपोर्ट रुका हुआ था। इस वजह से कई मुल्कों में, खासतौर पर मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका के मुल्कों में अनाज का बहरान पैदा हुआ है। यूनाइटेड नेशंस और तुर्की की कोशिशों से पिछले दिनों एक समझौता हुआ था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने माकूलियत पसंद कारकुन गोविंद पंसारे के कत्ल का केस एसआईटी से महाराष्ट्र एटीएस के हवाले कर दिया है। पंसारे और उनकी बीवी पर 16 फरवरी 2015 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हमला किया गया था। बाद में 20 फरवरी को पंसारे की मौत हुई थी। उनके खानदान ने इस केस को एटीएस के हवाले करने का मुतालबा किया था। उनका कहना था कि कत्ल के मास्टरमाइंड्स तक पहुंचने के लिए अब तक कुछ नहीं किया गया। सुनवाई के दौरान जस्टिस रेवती देवे ने कहा कि वो तहकीकात को एसआईटी से एटीएस के हवाले कर रही हैं। शुबा है कि हिंदुत्व कारकुनों ने पंसारे को हलाक किया था। पंसारे के अलावा उसी वक्त नरेंद्र दाभोलकर और फिर गौरी लंकेश को भी हलाक किया गया था। ये एक्सपर्ट्स के मुताबिक 2014 में नरेंद्र मोदी हुकूमत बनने के बाद से जो वाक़यात पेश आ रहे हैं, हिंदुत्व की जारहाना सरगर्मियां हो रही हैं, उनके अव्वलीन वाक़यात में से ये 3 कत्ल थे, जिनमें गोविंद पंसारे, दाभोलकर और गौरी लंकेश के कत्ल शामिल है। पार्लियामेंट में गड़बड़ और हंगामों का सिलसिला जारी है। अपोजिशन पार्टियों ने अलग अलग मसाइल पर एहतजाज जारी रखा। लोकसभा में कांग्रेस, डीएमके और कम्युनिस्ट पार्टियों के अरकान ने हंगामा आराई की। ये गड़बड़ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अमेंडमेंट बिल पर बहस के दौरान की गई। इस दौरान मरकजी हुकूमत ने डेटा प्रोटेक्शन बिल वापस ले लिया है। मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने यह बात बताई। इस बिल के मुताबिक सरकारी एजेंसियों को लोगों की मर्जी के बगैर उनके डेटा तक पहुंच हासिल हो सकती थी। राइट्स ग्रुप ने इन मंसूबों पर तनकीद की थी। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में नेशनल हेराल्ड का दफ्तर सील कर दिया है। हाल ही में ईडी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और बाज़ दूसरे कांग्रेस लीडर्स से इस केस के सिलसिले में पूछताछ की थी और दावे किए थे। कांग्रेस ने इस कार्रवाई को सियासी बदला करार दिया है। अपोजिशन पार्टियों का इल्ज़ाम है कि हुकूमत तहकीकाती एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस ने 4 शंबे को भी इस मसले पर पार्लियामेंट में गड़बड़ की। नेशनल हेराल्ड से मुताल्लिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने कई जगह दावे किए। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने अपनी कैबिनेट में तब्दीलियां की हैं और उन्होंने 8 नए वजीरों को शामिल किया, जिनमें साबिक बीजेपी रुकन पार्लियामेंट बाबुल सुप्रियो भी शामिल हैं। हाल ही में चीफ मिनिस्टर के करीबी वजीर पार्थ चटर्जी को टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। 8 नए वजीरों ने हलफ लिया, जबकि एक वजीर ने, जिन्हें आज़ाद चार्ज के साथ तरक्की दी गई, नया हलफ लिया। एक तेलुगु यूट्यूबर ने यह दावा किया है कि उसने मक्के मुकर्रमा में इस्लाम के मुक़द्दस मकामात का दौरा किया है, जिस पर एक तनाज़ा पैदा हो गया है। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने कानून की खिलाफ वर्जी के लिए उसके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। हाल ही में इसराइल के एक जर्नलिस्ट ने भी, जिसने अमरीकी सदर जो बाइडन के साथ जद्दा का दौरा किया था, मुक़द्दस मकामात का वीडियो पोस्ट करते हुए हलचल मचा दी थी, जिसके लिए सऊदी अरब की हुकूमत पर काफ़ी तनकीदें की जा रही हैं। सऊदी अरब में इस सिलसिले में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। यूट्यूबर रवि प्रभु ने एक लाइव चैट में दावा किया कि वो मक्का में दाखिल हुआ। उसने अपने मोबाइल फ़ोन पर तस्वीर भी दिखाई। इसमें वो काबतुल्लाह के करीब ठहरा हुआ है और दुआ के लिए अपने हाथ उठा रहा है। एक दूसरे वीडियो क्लिप में उससे पूछा जा रहा है कि वो कुरान की कुछ आयतें सुनाए। वो आयतें सुनाता है, जिसके बाद उसे जाने दिया जाता है। यूट्यूब पर उसके 6 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। उसने कहा कि वो पहला यूट्यूबर है जो मक्का में दाखिल हुआ है। वो पहला तेलुगु यूट्यूबर है जो मक्का में दाखिल हुआ है। रवि एक इंडियन अमेरिकन है। उसका दावा है कि वो सबसे ज़्यादा सफ़र करने वाला तेलुगु यूट्यूबर है। उसने यूट्यूब चैनल पर कई मुल्कों के दौरे के वीडियोस पोस्ट किए हैं। उसने दावा किया है कि उसने 187 मुल्कों का दौरा किया है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। बिगविल केक हाउस, हम तैयार करते हैं खालिस अपने हाथों से ड्राई फ्रूट्स, प्योर घी और नंबर 1 क्वालिटी के जाफरान, पिस्ता, बादाम, काजू और खोए से तैयार किए गए बिगविल के स्पेशल
एकदम की रोड। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा शुगर फ्री और गुड़ केसर रोड तैयार करने वाले पहले बेकर्स अपने नाम की तरह क्वालिटी में भी नंबर 1 है। सारे शहर की पसंद बेकवेल केक हाउस, टोरी चौकी, एक्स रोड, हैदराबाद। नैन्सी पेलोसी ने किया ताइवान का दौरा, सदर से मुलाकात, खित्ते में तनाव उरूज पर, बीजिंग गजबनाक, अमेरिका को दी वार्निंग। चाइना ने गैर मामूली जंगी मशकें शुरू कर दी, ताइवान के आसमानों में फाइटर जेट्स की उड़ानें, जापान ने भी किया एतराज। यमन जंग बंदी 2 महीनों के लिए बढ़ा दी गई, यूनाइटेड नेशंस ने किया ऐलान, कहा मुस्तकिल सीज फायर की कोशिशें जारी है। अमेरिका सऊदी अरब और अमारात को $5 बिलियन के हथियार बेचेगा, स्टेट डिपार्टमेंट ने किया ऐलान। यूक्रेन से रवाना अनाज का जहाज तुर्की से लेबनान जाएगा, मुआयनों के बाद इजाजत दे दी गई। गोविंद पंसारी कत्ल केस एसआईटी से महाराष्ट्र एटीएस के हवाले, बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला। पार्लियामेंट में गड़बड़ जारी, हुकूमत ने डेटा प्रोटेक्शन बिल वापस ले लिया। नेशनल हेराल्ड का दफ्तर सील, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की मनी लॉन्ड्रिंग केस में कार्रवाई। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।